हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है पैसेज का। पैसेज को रीड करिए। ये ओवरऑल पैसेज जो है डॉल्फिन पे है। ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए और मैं ओवरऑल पैसेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए, पैसेज जो है ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है डॉल्फिन के जो फ्रेंडली नेचर्स है उसके ऊपर, क्योंकि जो डॉल्फिन है वो फ्रेंडली क्रिएचर्स है और दे हेल्प अदर डॉल्फिन एंड केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर एंड प्रोटेक्ट द वीक। एंड इट इज़ आल्सो सजेस्ट दैट द दे मे हैव अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट द वर्ड। ठीक, ये ओवरऑल डॉल्फिन के बारे में है। और फोर्थ चीज जो इस पैसेज के बारे में है कि दिस पैसेज टेल दैट द challenge the idea of human superiority over a dolphin. It is also tell that argument that humans are superior because they can kill dolphin is dismissed. ये ओवरऑल पैसेज के यहाँ पे बारे में है। ठीक, नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इट इज ए क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट डॉल्फिन इज। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है डू नॉट वांट टू बी विद अस एज मच एज वी वांट टू बी विद देम। ये पैसेज गलत है, क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि दिस पैसेज डज नॉट डिस्कस हाउ डॉल्फिन want to interact with humans. सेकेंड अगर सेंटेंस की बात कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, आर प्रूवन टू बी लेस इंटेलिजेंट देन once thought. This is also wrong because this person actually suggest that impaired dolphin are more intelligent than people. And point number C, have a reputation for being friendly to the human. That this option is correct because this passage state that the dolphin are regarded as friendly creature and that they help human. Example, sounding failure has become a Romance time, common Romance time. So this option number C is correct. And option number D are most powerful creatures that live in the ocean. This is not because there is a no mention of their power, क्योंकि इस पैसेज में कोई पावर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो फाइनल आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। have reputation for being friendly to humans. Now move to the next question. Next question same passage से related है. The fact that the writer of the passage think that we can kill dolphin more easily than they kill us. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस होगा, जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो है यहाँ पे does not mean that we are superior to them, because this passage explicitly state that the argument that we are superior because we can kill them is the least satisfaction argument. This means that writer rejects superiority based on the killing abilities. So that the correct option is option number D, does not mean that we are superior to them. Now move to the next question. Next question है, one can infer from the reading that dash. हमारे पास options हैं. Now यहाँ पे ऑप्शंस आपको बताना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा। यहाँ पे है वन कैन इन्फर फ्रॉम द रीडिंग दैट dolphin are quite abundant in some area of the world. This is not a correct answer, correct sentence. Dolphin have skill that no other living creatures have, such that ability to think. Wrong answer. It is not usual for dolphin to communicate with each other. Wrong answer. Option number D, dolphin has have more social and traits that are similar to those humans. This option is correct because this passage discuss about how dolphin cares for sick member and protect the weak and interact socially, and which is human like nature. Now move to the next question. Next question है यहाँ पे he got a sharp dash, he might just get into a trouble if he is not careful. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं टंग, माउथ, इंटेलेक्ट, विजन, ब्रेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टंग, बिकॉज दिस फेस शार्प टंग इज एन Adams used to describe someone who speak in a harsh or critical way. So that's correct option is option number 1. And mouth, जो vision, brain, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। अगर विजन की बात की जा रही है तो बेसिकली शार्प विजन मीन्स कि आई साइड अनरिलेटेड टू ट्रबल। वहीं अगर ब्रेन की बात की जा रही है तो शार्प ब्रेन मीन्स इम्प्लाइज इंटेलिजेंस, बट इट डज नॉट फिट फॉर दिस सेंटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड है तो आटम को बताना है कि इसमें से क्या होगा। ठीक, नाउ प्रोस्क्रेस्टिनेट, यहाँ पे जो वर्ड है इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर डी,
Speed because it means that speed up or make something happen quickly. This is the opposite of this word means delay. This means delay. Now, और इसका ऑप्शन नंबर डी का मतलब जो होता है कि मीन्स टू स्पीड अप और मेक समथिंग हैपन क्विकली, तो यहाँ पे डिले का जो अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट, इफ देयर इज अ नो एरर चूज नो एरर। एंड सेंटेंस है ये, मम टोल्ड सी आंसर ऑल द कॉल्स लेटर। यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे जो एरर है वो कौन सी फर्स्ट में है, वन टोल्ड, बिकॉज इट इज द इनकरेक्ट। जो टोल्ड है वो टोल्ड क्या है, बेसिकली वर्ब है, तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, सो द करेक्ट स्ट्रक्चर वुड बी अ सुमन टोल्ड समवन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, समवन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग है वो कौन से पार्ट में, इस पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन। और इसकी जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, सुमन टोल्ड मी और सुमन टोल्ड हर फ्रेंड, ठीक, या सुमन टोल्ड समवन, ठीक, ये करेक्ट वर्ड है। ठीक, और इसका ओवरऑल जो सेंटेंस होगा, सुमन सेड सी वुड आंसर ऑल द कॉल्स लेटर, ये भी यहाँ पे वर्ड को इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ टोल्ड। हम लोग सेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेंटेंस बनेगा सुमन सेड सी वुड आंसर ऑल द कॉल्स लेटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंज मस्ट बी डैश टू रियलाइज द डैश ऑफ ग्रेटर रीजन इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट जो ब्लैंक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा चैलेंज मस्ट बी अ ओवरकम। ठीक, बिकॉज ओवरकम इज द मोस्ट लॉजिकल फेसेस एज अ चैलेंज नीड टू बी फेस्ड, तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर ओवरकम। अब सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल, बिकॉज टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ अ ग्रेट रिलीजन इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन। Because to realize the potential to it makes sense because overcoming challenges allow one to achieve the potential of religion economics integration, so correct option is option number A। अगर बाकी बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए, सरप्रास्ड एंड पावर, बेसिकली चैलेंज आर नॉट सरप्राइज एंड पावर इज नॉट राइट नाउन फॉर इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन, वेयर एज ऑप्शन नंबर सी इग्नोर एंड बेनिफिट, इग्नोर चैलेंज वुड नॉट बी लीड टू द बेनिफिट। ऑप्शन नंबर डी substance and advantage, challenge should not be a substance attempted and battle, this is not a fit structure for this sentence, so option A is only correct one। Now move to the next question। हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, आपको बताना है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा फिट होगा। तो ओवरऑल अगर सेंटेंस की बात करी है, कैन वी इमेजिन द कैरिंग ऑब्जेक्ट डेट आर 10 टाइम हैवियर देन द आवर ओन बॉडी वेट। ठीक, तो S2 S3, तो S2 S3 में यहाँ पे हम लोग बात करें क्या यहाँ पे हो सकता है। ठीक, नाउ तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन हमको गिवन है, PR गिवन है, और PR गिवन है, यहाँ पे PRQ डी गिवन है, QR गिवन है, RQ गिवन है। ठीक, नाउ करेक्ट सेंटेंस इज हेयर PNR। PNR is the correct sentence because ants however are able to carry or pull object much heavier than their own weight, and R is Superman probably could, but it does not seem possible for ordinary man to do. So the correct option is PR. Option number one is correct one। Now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको उसको रीड करना है, जो यहाँ पे जो गैप्स हैं उनको यहाँ पे फिल करना है। ठीक, नाउ नाउ यहाँ पे जो ओवरऑल पैसेज को रीड करिए, और यहाँ पे हमको बताना है जो वन प्लेस पे सेकंड प्लेस में क्या आएगा। ठीक, इन सेंटेंस में ABC में क्या यहाँ पे आएगा। ठीक, ओवरऑल हम यहाँ पे पढ़ें सेंटेंस के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हम लोग सी आएगा, बिकॉज बिफोर अराइविंग इन अमेरिका कैन सेंड अ लेटर टू द इंडियन विच ही इंडेड आई एम योर लविंग फ्रेंड, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी प्लेस आएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ द जो इट वाज द सेम नेम एज दैट वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिश्चियन सिटीज इन एशिया minor, which when translate means city of brotherly love।
डैश की प्लेस पे यहाँ पे आएगा A1 देयर आर वर्क टू बी डन नॉट एटलीस्ट फाइंडिंग द राइट स्पॉट ऑफ द सिटी फॉर द सिटी दैट कुड बी अ सेंटर पीस ऑफ द न्यू कॉलोनी and borrowed the name of from them because it's be suited perfectly। तो यहाँ पे C और A आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C A, यहाँ C A आएगा, A1 के प्लेस पे C और 2 के प्लेस पे A आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, यही हमारे सेंटेंस में यहाँ पे फिट आएगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि द फॉलोइंग सेंटेंस पेयर कैन बी रिसीव इनटू द वन बेटर सेंटेंस, चूज द बेस्ट रिवीजन। तो यहाँ पे लिखा द बाइसाइकिल ट्राइज इज फ्लैट, द बाइसाइकिल ट्राई इज ऑन द बाइक। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे जो होगा द फ्लैट बाइसाइकिल ट्राइज इज ऑन द बाइक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, द फ्लैट बाइसाइकिल ट्राइज इज ऑन द बाइक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the following question, one of the part of the sentence may have an error. Find out which of the part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option। तो यहाँ पे C has not completed her course, isn't it? यहाँ पे जो करेक्ट अगर हम बात की जाए सेंटेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है इज इट नॉट इट, यहाँ पे क्या है, एरर है। बिकॉज द करेक्ट टैग शुड बी a has C, because sentence is the present perfect tense and has not completed, the correct negative tag should be a match auxiliary verb has। So the correct जो error in this sentence is option number C is not it। Now correct sentence for this is she has not completed her course as C। ठीक, now move to the next question। Point of which part of the sentence below has an error and mark the correct accordingly। The moment after the pregnant lady came out of the hospital warden holding a baby boy in her arm। यहाँ पे बताना है कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, नाउ एरर को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे जो एरर है वो है यहाँ बॉय इन हर आर्म, यहाँ पे लिखा बॉय इन हर आर्म, यहाँ पे एरर है। बिकॉज जो फ्रेजेस है होल्डिंग अ बेबी बॉय इन हर आर्म create a ambiguity, it suggests that the lady is holding both baby and a boy, which is unclear। So this sentence is wrong here। So the correct phrase should be a holding a baby boy in her arm, it's clear that she is holding a one baby boy। So this option number D is a uh, wrong because it so unclear। So the correct sentence is overall the moment the correct sentence is the moment after the pregnant lady came out of the hospital warden ward holding a boy baby boy in her arm। दिस इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बॉय इन हर आर्म। ठीक, नाउ go to the next question। In the following question, one of the part of the sentence may have an error, find out which of the part of the sentence has an error। यहाँ यह लिखा है सेंटेंस है प्रिया क्विकली एक्सप्लेन दैट इन हर वर्ड ऑफ द सिंबल फीलिंग डज नॉट मीन्स एनीथिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गलत है डज नॉट मीन्स एनीथिंग, बिकॉज द जो फीलिंग है, जो सब्जेक्ट फीलिंग है इज अ प्लूरल, सो द वर्ब डज इज इनकरेक्ट। यहाँ पे जो वर्ब है डज वो क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डू आएगा। ठीक, तो करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा प्रिया क्विकली एक्सप्लेन दैट इन हर वर्ड ऑफ सिंबल फीलिंग डू नॉट मीन एनीथिंग। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये आपको पैसेज को रीड करना है, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे शो करना है। ठीक, नाउ पैसेज को रीड करिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है बिफोर लिविंग फ्रॉम कोची दिव्या वाज लिविंग इन अ लाइफ ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे होगा पेलेंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन बिकॉज द पैसेज स्टेट दैट द दिव्या was born on a healthy diamond merchant and a part of the family that has owned a business worth of 6,000 crore। So the correct word here, the lifestyle of Divya was living a life of peasantry। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेम उसी पैसे से रिलेटेड है। दिव्या वाज गिविंग सम मनी विच
could use only for when he was in extreme hardship. So option number A one is the correct one, because according to the passage, Divya father instruct that the 7,000 he was given should only be used in the emergency condition. So the correct option is option number one. And question number seven, father believed that dash. So father believed that experience is the best teacher. So option one is the correct one, because Divya father wanted him to understand the life and the struggle of the poor. He mentioned that in the passage that no university can teach you these life is skill except experience. So which directly support the idea of he believed that experience is the best teacher. So correct option is option number one. Now move to the next question. Next question is Kochi was chosen for the experience because in Kochi Divya, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो बिकॉज यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको पैसेज को रीड करना पड़ेगा। ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे पैसेज में यहाँ पे मेंशन है, ठीक। तो यहाँ पे ओवरऑल कुड नॉट गेट अ जॉब इजली, ठीक, क्योंकि ओवरऑल आप पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आई हैड नो जॉब अवर जॉब प्लेस, ठीक, फॉर फ्रस्ट्रेटेड एंड रिजेक्टेड 60 एट 60 प्लेसेस, ठीक। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट विच ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो हैज एन एरर एंड मार्क द ऑप्शन accordingly. So Akash crouched towards directly in the front of the cabinet, his face only inch away from the glass. So correct option here. Now for this sentence, uh, error identification is the word crouched. Crouched is a verb. It does not require their preposition towards. So it should be Akash crouched directly in the front of the cabinet instead. So the error identification in this sentence is option number A, because the crouch was, so crouch is the verb, and it does not require a preposition towards. So the correct word is Akash crouched directly in the front of the cabinet, his face only inch away from the glass, ठीक। now move to the next question. Next question है, read the each sentence to find out the whether there is a grammatical error in it, and the error if any will be in a one part of the sentence, the letter of the part of the answer. If there is a no error, the answer is D. So here यहाँ पे कोई भी सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आई कुड नॉट पुट अप इन द होटल, और because the boarding and lodging charge were, so for this यहाँ पे कोई सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस मिसिंग है। तो इसके बारे में बात करेंगे, मैं कमेंट में बोल इसका आंसर इसका क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे प्रिंट नहीं है, मिस्टेक हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज को रीड करना है, जो खाली प्लेस है उसको फिल करना है, ठीक। वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। वन की डैश अ मैन कॉल्ड डेमोसेल, ठीक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से ब्लैंक नंबर वन, यहाँ पे क्या आएगा, लिव्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी आएगा। नाउ ब्लैंक में अ फ्रेंड ऑफ हिज इवेंचुअली डैश, यहाँ पे आएगा बिकम, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी आएगा। देन हाउ लकी माई फ्रेंड डैश, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा वॉज, ऑप्शन नंबर बी, ही डैश ही वॉज own now a ruler, he must dash, he must be having, option of B, be having a great time, he dash, he will have, option of B, will have fine clothes, lots of money and number of servant, I wished I dash, सेवंथ का होगा I dash his luck, means I had his luck he dash, और एट में क्या होगा यहाँ पे डिसाइड, he decided, option number C, he decided to visit his friend to enjoy his hospitality when he dashed, option number 9 में क्या होगा रीच्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रीच द प्लेस
किंग हिमसेल्फ डैश। ऑप्शन नंबर 10 में क्या होगा, ओ सॉरी रीच्ड होगा। ऑप्शन नंबर 10 में होगा यहाँ पे रिसीव्ड, ऑप्शन नंबर बी रिसीव्ड। ओवरऑल सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपको रीड करके बताना था कि क्या यहाँ पे होगा। द किंग हिमसेल्फ रिसीव्ड हिम विद रेस्पेक्ट ऑफ अफेक्शन। ये ओवरऑल हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। तो अगर हम फिर से बात करें ओवरऑल सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पे आएगा लिव्ड, ये होगा बिकम। ऑप्शन नंबर 3 में होगा वॉज। ऑप्शन नंबर 4 में होगा वॉज, यहाँ पे होगा बी हैविंग। ऑप्शन नंबर 6 में होगा यहाँ पे विल हैव। नाउ दिस इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड करिए। और जिनके टीचर्स सिक्योरिटी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हैं ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।